Hi, good morning, my dear student. Today we are going to discuss your class 8 SST chapter The Making of the National Movement during 1870 to 1947. My dear student, today we will try to understand the topic Quit India Movement. Before we start this topic, I would like to teach you that the the previous condition, the political condition that has totally changed. Government Act, Indian Government Act 1935, that was introduced by British. According to that, the election held in India in 11 provinces. Congress lead the 7 provinces and he formed their government. But without permission of Indian leaders or these governments, Britishers used Indian and Indian resource in the Second World War. Indian leaders, nationalist leader, they felt that this is time when we bargain with British Empire. They were they they ready to favor them in this Second World War against Hitler, but they asked for some rights. Which rights? They asked for freedom of India. British Empire denied their demand. It means Indian leader, they want to bargain that if British government provide them freedom, they will help them in the Second World War. British government denied, and that's the result. The 20 after 28 months ruling the government resigned, and Gandhi ji was started a new movement, that was Quit India movement. So today we will try to discuss about that Quit India movement. आज हम इसी क्विट इंडिया मूवमेंट पे बात करेंगे. इस क्विट इंडिया मूवमेंट पे उन चीज़ों को देखेंगे कि किस तरीके से ये मूवमेंट आगे बढ़ा. एंड दिस इज important information for you that this movement, Quit India movement, is one of the movement in India during that time where there was no leader. Every leader was imprisoned during that time. Operation Zero Hour. Every leader of India were imprisoned by British government. The common people, having heard the speech of Mahatma Gandhi, they become very energetic and enthusiastic. They started the campaign. Sometime the march, which was done by the common people, became violent also. बहुत सारी घटनाएं घटी. कॉमन जनता ने महत्वपूर्ण नेता न होने के कारण रेल की पटरियां उखाड़ दी, डाकघर जला दिए गए, थानों में आग लगा दी गई, मनी लैंडर्स जो बड़े बड़े थे उनके घरों, उनके खाता बहियों को भी जला दिया गया. मूवमेंट तेजी से फैल रहा था. ये कॉमन मूवमेंट था जिसमें बड़ी संख्या में, एक ऐसा मूवमेंट था जिसमें भारत के सभी वर्ग के लोग
पार्टिसिपेट किए। मूवमेंट का दायरा इतना बड़ा था कि भारत में अभी कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं था जो इससे प्रभावित न हो। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इस एकमात्र मूवमेंट में हेलीकॉप्टर से, प्लेन से, मशीन गन से फायरिंग कराई। बड़ी संख्या में लोग मारे गए, लेकिन मूवमेंट ने अपनी गति पकड़ ली थी। अब ये दौर था जब ब्रिटिशर्स को ये लगने लगा कि हम ज़्यादा दिन तक भारत में नहीं रह सकते। अगर इसको थोड़ा और अच्छे से समझना है तो अब इसको थोड़ा ऐसे समझिए कि भारत छोड़ो आंदोलन, जिसको एक और शब्द से जाना जाता है, जिसको अगस्त क्रांति या अगस्त रिवॉल्यूशन, कब हुआ ये? 8 अगस्त 1942। ये मूवमेंट 8 अगस्त 1942 में हुआ, स्टार्ट किया गया। इवन आई मीन टू से दैट द क्विट इंडिया मूवमेंट was also known the August Revolution. It was started in August 1942. भारत छोड़ो आंदोलन, यहाँ पे गांधी जी के साथ अमेरिकी पत्रकार लुई फिशर भी था। लुई फिशर ने इन एक एक घटनाओं को लिखा। भारत छोड़ो आंदोलन या अगस्त क्रांति भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन की अंतिम महान लड़ाई थी। इट वॉज द लास्ट, द ग्रेट फाइट अगेंस्ट ब्रिटिशर्स। एंड आई inform you that the Britishers felt that now we will not stay here a long time, having felt the condition which happened during 1942 during this movement. क्रिप्स मिशन खाली हाथ भारत से वापस जा चुका था। क्रिप्स मिशन से भारतीयों को चले जाने का एहसास हुआ। इंडियन सोचते थे कि क्रिप्स मिशन उन्हें कुछ छूट देगा, कुछ उन्हें रिलैक्सेशंस मिलेंगे, लेकिन क्रिप्स मिशन से उन्हें कोई फायदा नहीं मिला। इधर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तेजी से परिस्थितियां बदल रही थी। जापान भारत के पूर्वी हिस्से से भारत के कई सारे क्षेत्रों पे कब्जा करते जा रहा था। त्रिपुरा, मेघालय, आसाम के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहा था, बर्मा को जीत चुका था। और अब जापान सफलतापूर्वक सिंगापुर, बर्मा, मलाया पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा था। दूसरी ओर युद्ध के कारण जो वस्तुओं की कीमत थी उसके दाम बहुत ज्यादा बढ़ गए थे, जिसे जनता में पर्याप्त संतोष था। लोगों में अनसेटिस्फेक्शन था वस्तुओं की कीमत बढ़ने के कारण। और अब जापान के बढ़ते हुए प्रभुत्व को देखकर 5 जुलाई 1942, 5 जुलाई 1942 गांधी जी ने अपने पत्र हरिजन में लिखा, अंग्रेजों भारत को भारतीयों के लिए छोड़ो, भारत को जापान के लिए मत छोड़ो, बल्कि भारतीयों को व्यवस्थित रूप से छोड़कर जाओ। और फिर उन्होंने वर्धा प्रस्ताव पारित कर दिया। गांधी जी ने कांग्रेस को अपने प्रस्ताव को स्वीकार न किए जाने की स्थिति में कांग्रेस को चुनौती देते हुए कहा, यदि कांग्रेस मेरी बात नहीं मानेगी तो मैं क्या करूंगा? मैं देश के बालू से कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा। 14 जुलाई 1942 का टाइम आया जब कांग्रेस कार्य समिति की वर्धा में बैठक हुई और गांधी जी के इस विचार को पूर्ण समर्थन मिला। अब ये तय हुआ कि एक राष्ट्रव्यापी आंदोलन अंग्रेजों के खिलाफ चलाया जाएगा। और वर्धा में कांग्रेस कार्य समिति ने अंग्रेजों भारत छोड़ो का प्रस्ताव पारित कर दिया, क्विट इंडिया मूवमेंट का प्रस्ताव
पारित कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया। 1 अगस्त 1942 इलाहाबाद में तिलक दिवस मनाया गया और नेहरू ने कहा, यहाँ पे नेहरू ने कहा कि हम आग से खेलने जा रहे हैं, जिसकी मार हमारे ऊपर पड़ेगी। हम आग से खेलने जा रहे हैं, इसकी मार हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। ये एक ऐसी दुधारी तलवार है, हम एक ऐसी दुधारी तलवार का प्रयोग करने जा रहे हैं जिसकी चोट उल्टे हमारे ऊपर भी पड़ सकती है। 7 अगस्त 1942 बंबई का ग्वालियर टैंक मैदान, कांग्रेस का अधिवेशन, नेहरू ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पेश कर दिया। थोड़े बहुत संशोधन के बाद 8 अगस्त 1942 को कांग्रेस कार्य समिति ने इसे स्वीकार कर लिया। यहां पे कांग्रेस ने इस ऐतिहासिक सम्मेलन में गांधी जी ने लगभग 70 मिनट तक एक लंबा स्पीच दिया, एक लंबा भाषण दिया। और ये भाषण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का महत्वपूर्ण स्पीच बना। पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि भारत छोड़ो आंदोलन का ये दौर, महात्मा गांधी के द्वारा गया स्पीच ऐसा था मानो गांधी अवतार एवं पैगंबर के प्रेरक शक्ति के रूप में बोल रहे थे। गांधी जी कांग्रेस के इस ऐतिहासिक सम्मेलन में 1942 में ग्वालियर टैंक के मैदान पे कांग्रेस के सेशन को संबोधित करते हुए गांधी जी ने 70 मिनट का भाषण दिया। उन्होंने कहा, मैं आपको एक मंत्र देता हूं, डू और डाई, करो या मरो, जिसका अर्थ था भारत की जनता की आजादी के लिए हर ढंग से भारत के लोगों को प्रयत्न करना। अब भारतीयों को हर तरह से अपने को तैयार करना था स्वतंत्रता, बस इस बात का ध्यान देना था आंदोलन गुप्त या हिंसात्मक न हो, वायलिज्म की तरफ आंदोलन ना मुड़े। उन्होंने कहा, आप लोगों में से प्रत्येक व्यक्ति को अब से स्वतंत्र व्यक्ति समझना चाहिए, इस प्रकार कार्य करना चाहिए कि मानो आप स्वतंत्र हो। मैं स्वतंत्रता से कम किसी भी वस्तु से संतुष्ट नहीं होऊंगा। गांधी जी के भाषण के बारे में पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि वास्तव में गांधी जी उस दिन अवतार एवं पैगंबर की प्रेरक शक्ति के रूप में भाषण दे रहे थे। इस भाषण के दौरान गांधी जी ने कहा था, हम अपनी गुलामी स्थायी बनाना नहीं चाहते या हम अपनी गुलामी स्थायी बनाया जाना नहीं देख सकते। गांधी जी ने अपने भाषण में लोगों को निर्देश दिया, लोगों को इंस्ट्रक्शंस दी। क्या इंस्ट्रक्शंस था? गांधी जी ने इंस्ट्रक्शन देते हुए कहा कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, गवर्नमेंट वर्कर्स हैं, वो नौकरी ना छोड़े, अपनी जॉब को ना छोड़े, जॉब रिजाइन ना करें, बल्कि वो कांग्रेस के प्रति अपनी निष्ठा घोषित कर दें, अपनी लॉयल्टी कांग्रेस के प्रति डेडिकेट करें। राजे और महाराजे, जो राजा हैं, किंग हैं, वो जनता की प्रभुसत्ता को स्वीकार करें। किंग्स हैव टू एक्सेप्टेड द सॉवरेंटी ऑफ द कॉमन पीपुल। और ऐसी रियासतों में रहने वाली जनता अपने को भारत राज्य का अंग घोषित कर दे। एंड द कॉमन पीपुल, द पीपुल हु लिव्ड इन देयर एरिया, देयर प्रोविंसेस, they announce that we are the citizen of India, we are not citizen of particular province or particular इन राजा का क्षेत्र है, हम वहाँ के नहीं बल्कि हम भारतीय हैं, ये इस बात की घोषणा प्रत्येक नागरिक कर दे। गांधी जी ने स्टूडेंट से कहा कि वे पढ़ाई तभी छोड़ें जब आज़ादी प्राप्त होने तक उस पर अडिग रह सकें। और फिर उन्होंने काश्तकारों को निर्देश दिया, पीजेंट्स को, कि यदि जमींदार उनका साथ न दें तो वे कर ही न दें, उन्हें रेवेन्यू टैक्स ही चुकता न करें। और ऐसे कंडीशन में, ऐसी परिस्थिति में पूरी तरीके से गांधी जी ने लोगों पे दबाव, लोगों का दबाव, लोगों का प्रेशर ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर और उस क्लास के ऊपर, उस वर्ग के ऊपर डालने का प्रयास किया जो कहीं न कहीं से ब्रिटिश गवर्नमेंट के सपोर्टर थे। अब 8 अगस्त की मध्य रात्रि, मिडनाइट ऑफ 8 अगस्त,
कांग्रेस के बड़े नेता गिरफ्तार करने की योजना बनाई गई। 9 अगस्त की सुबह ही ऑपरेशन जीरो आवर के तहत सारे बड़े नेताओं को अरेस्ट कर लिया गया। गांधी जी को पूना के आगा खान पैलेस तथा कांग्रेस कार्यकारिणी के अन्य सदस्यों को अहमदनगर फोर्ट में रखा गया। सरोजिनी नायडू, कस्तूरबा गांधी को भी आगा खान पैलेस में रखा गया। जवाहरलाल नेहरू अल्मोड़ा जेल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बांकीपुर जेल में, पटना मौलाना अबुल कलाम आजाद बांकुड़ा जेल में रखे गए। अलग अलग नेताओं को अलग अलग जेलों में रखा गया, महत्वपूर्ण नेताओं को। जैसे कि मैंने कहा कि गांधी जी को कहाँ रखा गया? आगा खान पैलेस में। जवाहरलाल नेहरू को कहाँ रखा गया? अल्मोड़ा जेल में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बांकीपुर पटना के जेल में, और मौलाना अबुल कलाम आजाद को बांकुड़ा जेल में। कांग्रेस को अवैधानिक संस्था घोषित कर ब्रिटिश सरकार ने इस संस्था की संपत्ति जब्त कर ली। साथ ही जुलूसों पर प्रतिबंध लगा दिया। जो मार्च होते थे उस पर प्रतिबंध लगा दिए गए। इस आंदोलन ने हिंसा और अहिंसा का मिश्रण देखने को मिलता है। सरकार ने इसे कठोरतापूर्वक दमन करने का प्रयास किया। परिणामस्वरूप इस आंदोलन ने एक भूमिगत ढांचा तैयार कर लिया। ऐसे बहुत सारे नेता थे जो भूमिगत रह करके इस आंदोलन को गति देने का प्रयास कर रहे थे। अबड़ा आसफ अली, अच्युत पटवर्धन, राम मनोहर लोहिया, जयप्रकाश नारायण जैसे नेता, छोटू भाई खुड़ासी, बीजू पटनायक, सुचेता कृपलानी, ये ऐसे नेता थे जो गुप्त रूप से इस आंदोलन को शक्ति प्रदान कर रहे थे, नेतृत्व दे रहे थे। इन दिनों आंदोलन का संचार पहुंचाना एक सबसे महत्वपूर्ण बात था, एक महत्वपूर्ण घटना थी इस समय की, कि लोगों तक मैसेज पहुंचता रहे। उषा मेहता और राम मनोहर लोहिया डेली ये लोग अपने रेडियो स्टेशन से बातें करते थे, लोगों से इंटरेक्ट होते थे। रेडियो स्टेशन का प्रसारण कार्य 14 अगस्त सर्वप्रथम उषा मेहता ने प्रारंभ किया। एक अन्य केंद्र बाबू भाई चला रहे थे, जबकि राम मनोहर लोहिया नियमित रूप से कांग्रेस के रेडियो पे बोलते थे। नवंबर 1942 पुलिस ने इसे खोज निकाला और इसे जब्त कर लिया गया। रेडियो स्टेशन जब्त कर लिया गया। इस अपराध में उषा मेहता और बाबू भाई को 4 वर्ष की सजा भी दी गई। लेकिन आंदोलन की गति धीरे नहीं हुई। भारत की अंग्रेजी सरकार ने 13 फरवरी 1943, 13 फरवरी 1943 में भारत छोड़ो आंदोलन के समय हुए विद्रोह को पूरा दोष गांधी जी और कांग्रेस के ऊपर थोप दिया। गांधी जी ने बेबुनियाद दोषों को अस्वीकार करते हुए कहा कि मेरा वक्तव्य अहिंसा की सीमा में था। मैंने ये नहीं कहा था कि आप मेरी जनता हिंसा करने लगे। मैंने क्लियर इंस्ट्रक्शंस दिया था कि सभी लोग अहिंसक माध्यम से अपने विरोध को प्रदर्शित करें। अब स्वतंत्रता संग्राम के प्रत्येक अहिंसक सिपाही को कागज या कपड़े के टुकड़े पर करो या मरो नारा लिखकर चिपका लेना चाहिए, जिससे यदि सत्याग्रह के समय उनकी मृत्यु हो जाए तो इस चिन्ह के आधार पर उन्हें दूसरे लोगों से अलग किया जा सके। गांधी जी ने एक स्ट्रेटजी लोगों को सजेस्ट की। गांधी जी ने अपने ऊपर लगे आरोप सिद्ध करने के लिए सरकार को निष्पक्ष जांच की मांग की। सरकार ने इसको ध्यान नहीं दिया। 10 फरवरी 1943 गांधी जी 21 दिन का उपवास शुरू कर दिया। इनके देश पर वक्तव्य पूरा व्यापक प्रभाव पड़ा। जनता ने सरकार पर गांधी जी को रिहा करने के लिए दबाव डाला। विदेशी समाचार पत्रों ने भी गांधी जी को जेल से छोड़ने के लिए सुझाव दिया। परंतु चर्चिल ने कहा कि जब हम दुनिया में हर जगह जीत रहे हों तब ऐसे समय कम वक्त इस बुढ़े के समक्ष कैसे झुक सकते हैं जो सदियों से हमारा दुश्मन रहा है। चर्चिल ने कहा कि मैं ब्रिटेन का प्रधानमंत्री इसलिए नहीं बना कि मैं अपने कॉलोनियल स्टेट को छोड़ दूं। सरकार की इस बर्बर नीति का विरोध वायसराय के काउंसिल के सदस्य सर मोदी, सर NN सरकार और अड़े ने इस्तीफा दे दिया। गांधी जी को बात की बीमारी के आधार पर 6 मई 1944 को रिहा कर दिया गया और इस बीच उनकी यही जेल में उनकी पत्नी कस्तूरबा गांधी और उनके पर्सनल सेक्रेटरी जो प्यारेलाल जी थे उनकी मृत्यु हो गई। उनके जो पर्सनल सेक्रेटरी थे महादेव देसाई, उनकी मृत्यु हो गई। महादेव देसाई और कस्तूरबा गांधी
जेल में ही, जब गांधी जी यहाँ इम्प्रिजन थे, जेल में बंद थे, यहीं उनकी मृत्यु हो गई। भारत छोड़ो आंदोलन की एक विशेषता ये थी कि इस दौरान कई समानांतर सरकारों का गठन हुआ, जैसे बलिया, तामलुक, सतारा, जैसे पैरेलल गवर्नमेंट बना दी गई। और ये पैरेलल गवर्नमेंट क्या थी? ये पैरेलल गवर्नमेंट एक नई सत्ता बना रही थी। तो ये था क्विट इंडिया मूवमेंट का पूरा वर्णन। लेट अस कम एंड ट्राई टू डिस्कस अबाउट दैट कि इस क्विट इंडिया मूवमेंट में आपका बुक क्या लिखता है। क्विट इंडिया एंड लेटर, दिस इज योर टॉपिक। Mahatma Gandhi decided to initiate a new phase of movement against the British in the middle of the Second World War. The British must quit, and immediately he told them to the people, he said, do or die in your effort to fight the British. What I told you, that in this moment, Gandhi suggested their own people that this is a time when you decided that what you have to do. You have to give, you have to, maybe possible that you have to give your sacrifices. You would have given sacrifices for your nation. So, I give you a mantra. Do or die. Do or die to the people, he said, do or die in your effort to fight the British. Do or die, it means it is your own effort to fight against this British rule. इस colonial rule, इस क्या किसके इस कॉलोनियल रूल के अगेंस्ट लड़ने की बात गांधी डू और डाई के थ्रू कर रहे थे। अब यहां पे गांधी जी का जो स्टेटमेंट था उसको अगर ध्यान से देखें, डू और डाई की बात तो अपने लोगों से कर रहे थे कि अब समय आ गया है कि आप लोग क्या करेंगे, लड़ाई करेंगे। अब ब्रिटिश गवर्नमेंट के थ्रू लड़ने के लिए अपने को तैयार कर लीजिए, बिकॉज वी हैव नो टाइम। India faced the major difficulties because during World War time, the Japan, he conquered the various other countries like Singapore, like Malaysia and Myanmar, and he entered in India. The eastern portion also captured by them. The eastern portion means Tripura, Meghalaya, Assam, these areas, Andaman Nicobar Deep Samu also, that was conquered by Japanese. So Mr. Gandhi requested to British Empire that, sir, leave India for Indians, not for Japanese. भारत भारतीयों के लिए छोड़िए, जापानियों के लिए नहीं। ये बातें गांधी ने ब्रिटिश एम्पायर से की। देखिए क्या कहता है, बट यू मस्ट फाइट नॉन वायलेंटली। गांधी हियर सजेस्टेड देयर ओन पीपल दैट यू हैव टू नॉट इन्वॉल्व हिमसेल्फ इन द वायलेंट मूवमेंट, यू हैव टू फाइट विद नॉन वायलेंट वेपन। Gandhi ji and other leaders were jailed at once, but the movement spread. It especially attracted peasants and youth who gave up their studies to join it. The communication and symbols of state authority were attacked all over the country. In many areas, the people set up their own government. These lines, there is no need to explain that. I have already informed you. What? The line which is given in your book कहता है गांधी जी एंड अदर लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट द मूवमेंट स्प्रेड। ऑपरेशन जीरो आवर 8 अगस्त 1942
Early morning 9th August 42, Operation Zero Hour, all the major leaders they were arrested. Gandhi ji arrested in Aga Khan Palace. Pandit Jawaharlal Nehru, Almora jail. He was imprisoned. Dr. Rajendra Prasad in Bankipur. And such type of other leaders also, they were arrested. And when the leader arrested, the common people, क्या हुआ? ये लोग भड़क गए. Movement turned out from non-violent to violent. वायलेंस की जगह वो नॉन वायलेंस की जगह वो किधर मुड़ गया? वायलेंस की तरफ मुड़ गया. द गवर्नमेंट प्रॉपर्टी दैट वाज, क्या किया गया? कहते हैं कि द लीडर्स वर जेल्ड एट वंस बट मूवमेंट स्प्रेड. It especially attracted the peasants and youth who gave up their studies to join. The communication and symbol of state authority were attacked all over India. The government property attacked all over India. In this movement, the main, I mean to say that the Kaunsa group, main group who involved, they were peasants and they were students. ये स्टूडेंट्स थे, ये पीजेंट्स थे जो बड़ी संख्या में इस आंदोलन से जुड़े. और इन लोगों ने देश की आज़ादी के लिए एक तीव्र प्रतिरोध शुरू कर दिया. कहता है इन मेनी एरियाज द पीपुल सेट अप देयर ओन गवर्नमेंट. सतारा, बलिया, तामलुक, these were the place where the parallel government was established by Indians. एक अपनी गवर्नमेंट उन्होंने स्टार्ट कर दी. द फर्स्ट रिस्पॉन्स ऑफ द ब्रिटिश वॉज सीवियर रिप्रेशन बाय द एंड ऑफ 1943. Over 90,000 people were arrested and around 1,000 killed in the police firing. What I am telling you, that in this moment, British government used the machine guns and helicopters. They burst firing on the common people who was marching against British government. Huge amount of the people, 90,000 people, they were arrested and 1,000 people, they were killed. But here I want to inform you this data given by government. What is actual data? What would be actual data? The actual data would be different from that which is given by the government. I mean to say not only 90,000 arrested, more than 2 lakhs people, 2 lakh people, they were arrested and 1,000 people killed. No, never. 1,000 and 1,000, हजारों लोग मारे गए होंगे. यू कैन इमेजिन योर माइंड कि जब हेलीकॉप्टर से बस्ट फायरिंग होगी, ओपन फायरिंग की जाएगी मशीन गन के द्वारा, तो क्या सिर्फ 1,000 लोग मारे गए होंगे? हाउ स्ट्रेंज. दे वर टेलिंग लाई. ब्रिटिश गवर्नमेंट टेलिंग लाई. बट हियर वन थिंग्स इज वेरी क्लियर कि अब जनता सड़कों पे आ चुकी थी ब्रिटिश गवर्नमेंट का विरोध करते हुए. अब इसके बाद का जो पॉइंट्स है टूवर्ड्स इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन. ये टूवर्ड्स इंडिपेंडेंट एंड पार्टीशन को समझने के लिए आपको उन सारी परिस्थितियों को समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा. क्विट इंडिया मूवमेंट में क्या हुआ. इट इज अ वास्ट स्टोरी, इंटरेस्टिंग स्टोरी इन विच वी सी. हमने देखा, क्या देखा हम लोग? वी सा दैट the movement is widespread in whole India, from Kashmir to Tamil Nadu, from Assam to Gujarat. No one place who are not affected this movement. Everyone want to become free. Everyone accepted the instruction and suggestion which was given by Mr. Gandhi. Even again, I am telling you that
This was the first movement in which leader not lead that because they were arrested. 8 August 1942, Gandhi ji given a forceful speech in Gwalior Tank field. He addressing their own people. Their speech was influence the common people to involve himself in this movement for their nation. Gandhi ji here given a mantra, do or die, karo ya maro. This is the very important things. एक महत्वपूर्ण बात थी, डू और डाई, करो या मरो की बात। क्यों? क्योंकि अब गांधी जी ने लोगों को कहा कि आप तय कर लीजिए आज आप अपने देश के लिए क्या करेंगे। गांधी जी ने कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए अपने लोगों को। आई इन्फॉर्म यू, अगेन आई एम टेलिंग यू इन शॉर्ट दैट कि भारतीय जनता को एक सजेशन कि आप लोग अपने देश के लिए अपने को भारत देश का नागरिक घोषित कर दीजिए। जमींदारों को कहा कि आप लोग या तो जनता की सॉवरेंटी को स्वीकार कर लीजिए, अदरवाइज आप अपनी प्रभुसत्ता छोड़ दीजिए। गांधी जी ने स्टूडेंट्स को सजेशन दिया कि आप लोग अपनी पढ़ाई तभी छोड़िएगा जब ये तय कर लीजिएगा, व्हेन यू रिजॉल्व दैट व्हेन एवर इंडिया विल नॉट फ्री वी विल नॉट स्टार्ट आवर एजुकेशन और स्टडी। उन्होंने गवर्नमेंट जो वर्कर्स थे, ऑफिसर्स थे, he suggested them, yes, you should not left your job. You should be in your job and you have to what? Devote your loyalty not for your British government but also Indian government. He also urged the peasants that you had not to pay the revenue taxes. तो इस तरीके से गांधी ने हर जगह एक इंस्ट्रक्शन दिया लोगों को। बट ही आज ही अपील देयर ओन पीपुल्स दैट दिस मूवमेंट वाज वेरी इंपॉर्टेंट बट यू नेवर फॉरगेट दैट यू हैव टू स्टार्टेड इट विद द हेल्प ऑफ नॉन वायलेंट वे। नॉन वायलेंस वे किस तरीके से? एक ऐसा तरीका जो नॉन वायलेंस के थ्रू, अहिंसात्मक तरीका। ये था आपका क्विट इंडिया मूवमेंट। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे आपके टूवर्ड्स इंडिपेंडेंस एंड पार्टीशन। तो आज के लिए इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।